Good morning, everybody. So, in our previous session, we have seen the various concepts regarding the pointer in C++. So, let's revise in within 10 minutes. Very simple definition of a pointer: the variable which stores the address of another variable. So, I given you example. Suppose you are having a variable A. So, for that you have created the pointer B, that is the integer pointer. And when this B is called as the integer pointer, only when this B is going to contain the address of another variable. So that's why definition is variable which stores the address of another variable, So that variable is called as a pointer variable. So here B is called as a pointer variable. Like we have seen how we can create a pointer for a structure. In the same way, now in C++, we are going to see the concept of classes. So that's why you know that for a class, you create an object. So for this class student, we created object S1. And for this S1, we created a pointer P, that is a star P. And now when you are going to satisfy the condition of a pointer, when this P is going to contain the address of the object S1. So here P is going to contain the address of object S1. So that's why now here P is called as a pointer object. For which object? For S1 object. Now in the same way, you can create a pointer for number of objects. Like suppose you can give this as a P1 title, then you can create here the S2, then S3, and now here you can create star P2, then comma star P3. So you can do it number of times, and here also you can go for now P2 is equals to ampersand S2. तो ये P2 के लिए हो गया, फिर आपका P3 लग रहा है. Even we can create an array of pointers. Okay, that concept we already seen in C language. In the same way, you can create a pointer for the objects also. That is the array of objects का आपने देखा था, वैसे हम pointer के लिए भी क्या कर सकते हैं, array बना सकते हैं. Object का जो array रहेगा उसके लिए भी हम pointer बना सकते हैं. Okay, so this is about the basics regarding the pointer. Now here the number of times we have to deal with the object pointer. So let's see how we can create the pointer for the object. So that's why here you can see student S1 is here. So normally we will do like this one: S1.get data, S1.show data. Now I created a pointer for object S2. Means here I have created object S1. Now I have created object S2, and now for this object S2 I created a pointer star P. And now using this P, for this P, I assign the address of object S2. And then you have to use this special operator, that is the arrow operator. Even this operator also we have used in structure. Like when structure variable is going to access the structure element, so that time, pointer structure variable. अगर सपोज आपको याद आ रहा होगा तो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का पॉइंटर बनाया था, और स्ट्रक्चर वेरिएबल के पॉइंटर के थ्रू हम स्ट्रक्चर एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे. सो दैट टाइम वी आर यूजिंग द एरो ऑपरेटर. सो स्ट्रक्चर इज just similar to classes. Only in classes we are having access specifier, but in structures we are having all the data or all the elements only in a mode of public. Means whatever the data is there, that is only the public. But in classes we can make it as a private. We can make them as a protected. Okay. So here you can keep in mind, whenever you are having object pointer, so that time you have to make a use of this arrow operator. Okay. So there are 4 operators. This is a dot. अब डॉट मीन क्या होता है कि दोनों साइड कैसी है, नॉर्मल है. मींस देयर शुड नॉट बी पॉइंटर ऑन बोथ द साइड्स लाइक दिस वन. S1 नॉर्मल है हमारा ऑब्जेक्ट, और गेट डेटा भी हमारा नॉर्मल ही है. सो दैट्स व्हाई हियर इज अ डॉट ऑपरेटर. और यू कैन आल्सो से दैट लाइक हियर, सपोज यू वांट, सो s.e बोलो और s.get डेटा बोलो, दोनों नॉर्मल है. ओके, बोथ साइड्स आर नॉर्मल. डॉट स्टार मींस राइट साइड रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंटर. कौन? Right side representing a pointer. Means you have created a pointer for a data member, or you have created a pointer for a member function. So suppose I will write कि भाई मैंने a के लिए कौन सा बना दिया, अब कैसे बनाता है that we seen already. तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, pa बना लिया a के लिए. सॉरी, इस तरीके से s डॉट स्टार pa. तो ये आपका क्या हो गया, देखो आपका यस नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, एंड ये pa क्या है, पॉइंटर बना लिया आपने a का, स्टार pa है. Then arrow means left side representing a pointer. Means अभी left side में कौन रहता है हमेशा,
ऑब्जेक्ट रहता है। ये हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि लेफ्ट साइड ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन सी प्लस प्लस। ओके, हमेशा लेफ्ट साइड में देखो, क्योंकि हम जो भी डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है हमारे नॉर्मल मेंबर फंक्शन, दे ऑल हैव बीन एक्सेस ओनली यूजिंग द ऑब्जेक्ट। बाकी आपका जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, आपका फ्रेंड फंक्शन है, दे कांट बी दे कांट बी एक्सेस यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा भी कौन है, पॉइंटर है, तो ये पी आ गया और एरो आ गया और आपका गेट डेटा या शो डेटा जो भी रहेगा वो आएगा। ओके, और एरो स्टार मीन्स दोनों जगह पॉइंटर, माना लेफ्ट भी पॉइंटर तो ये पी बन गया आपका, और राइट भी पॉइंटर चाहिए उसको, राइट भी पॉइंटर चाहिए तो राइट का सपोज हमने पी ए बना लिया, ये जो था डेटा। अब ये क्लियर रहना चाहिए कि भाई पॉइंटर किसका बना हुआ है। हमने ए का पॉइंटर, क्योंकि मैंने अभी आपको मेंबर फंक्शन का पॉइंटर कैसे बनाते हो आपको सिखाया नहीं है, दैट वी विल सी नाउ। ओके, तो अभी मैंने आपको डेटा मेंबर का ही पॉइंटर कैसे बनाया वो सिखाया है, उसके लिए भी लिख के बता देता हूँ यहाँ पे एक लाइन में। अगर आपका यहाँ पे सिंपली इक्वल्स टू लिख दो, ओके, और आपको ये लाइन देखो यहाँ पे, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंटर आ गया, तो यहाँ पे पी लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया, एम्परसैंड आ गया, एम्परसैंड लिख दो, ये तो आपको पता है। यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे क्या आया, S2 आया। अब ये कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट वाला है, अभी हम किसके लिए बनाएंगे, डेटा मेंबर के लिए बनाए, तो हमारा डेटा मेंबर कौन सा है, ए है। अब ए कौन से क्लास को बिलोंग करता है वो लिखना है आपको, तो ए कौन से क्लास को बिलोंग करता है, सैंपल को बिलोंग करता है। अगर ए सैंपल को बिलोंग करेगा तो ए का ही पॉइंटर कौन है, पी है, या फिर पी ए ले लो। वेरी सिंपल, पहले क्या लिखो, पी ए जो पॉइंटर बनाना है, ये आपका जो स्टेटमेंट रहता है वैसे ही यहाँ पे लिखना है, सिर्फ आपको वैसे ही यहाँ पे। ओके, तो ए कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा था, सैंपल क्लास को। इन द सेम वे ये जो पी आप बना रहे हो ये भी कौन से क्लास को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए का ही रिप्रेजेंटेशन कौन है अभी, स्टार पी ए है। सो हियर यू कैन राइट डाउन सैंपल स्कोप रिजोल्यूशन। और आपको अभी बताना पड़ेगा कि ए का टाइप क्या था, इंटीजर था, तो स्टार पी का भी टाइप क्या रहेगा, हियर दैट विल बी इंटीजर। तो ये बन गया आपका पॉइंटर फॉर डेटा मेंबर ए। वेरी सिंपल, समझा। तो ये हमारा क्या था, स्टार पी ए इक्वल्स टू एम्परसैंड ए था, स्टार पी ए नहीं था। अभी हमको यहाँ पे लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम दो लाइन में लिखते थे, यहाँ पे हम सिंगल लाइन में वो कोट लिख रहे, वो सिंटैक्स लिख रहे। So that's why star PA is equals to ampersand A. Now A belongs to your class sample, so that's why star P also belongs to your class sample, and the type of A and star P is integer. So आपके ध्यान में रहना चाहिए कि ये नॉर्मल डेटा मेंबर है, ये स्टार PA पॉइंटर डेटा मेंबर है। तो यहाँ पे देखो s डॉट a लिखा मैंने, फिर यहाँ पे s डॉट स्टार PA मीन्स राइट साइड पॉइंटर डेटा मेंबर, फिर p एरो मैंने गेट डेटा लिखा, या फिर यहाँ पे मैं p एरो a भी कर सकता था, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे पी एरो स्टार पी ए किया, तो ये हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट पॉइंटर एक्सेसिंग और नॉर्मल मेंबर फंक्शन। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जा रही तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ लाइक दिस। माना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंटर ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग योर नॉर्मल डेटा मेंबर, पॉइंटर ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग इज योर पॉइंटर डेटा मेंबर। हियर आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर डेटा मेंबर, यहाँ पे आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग नॉर्मल डेटा मेंबर। तो ये बोलना पड़ेगा मुंह से, जितने बार बोलोगे उतना फिर पक्का होगा, और फिर जैसी आपकी नजर पड़ेगी सिंपल ही है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर डेटा मेंबर, कुछ ऐसा डिफिकल्ट वर्ड्स है ही नहीं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंटर्स। नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम्स। So who are starting with this session now. So in this session we are going to explore the various programs over the pointers in C++. So let's see one by one program here. So first program, that is simply you have to create a class, and in that class you have to create a pointer for the object. So as usual, you know that this is your class college. In class college you take a name, address and code, get D. In get D here we are reading the strings. So that's why we have to read the string, complete strings. So that's why we have taken the function, or we are using the function that is a getLine function, and getLine function always access using the object that is a cin object. Okay, so that's why cin dot getLine, because getLine. Okay, so this getLine, ये getLine तो string read के लिए हो रहा है, अगर आपको put करना है तो उसके लिए put भी है, getC भी है, so number of functions. अब यहाँ पे हमको single character ने we have to read a complete line,
So that's how we're taking get line. Suppose you have to read a single character, so that's at that time you can also take a function that is a get c, but that get c is again access using a c in object itself. अगर आपका put होगा तो put you have to access using a c out, क्योंकि get क्या कर रहा है, read का, read के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, scene. This is the inbuilt object. Okay. In the same way, suppose you have to put data, so for put you have to make a use of a cout object, क्योंकि put से हम show करते हैं. So that is the utility of the cout object. Okay, तो ये कर लिया, ये show भी कर लिया. Now this is important to us. So for college we have created object c, and now for object c we created a pointer star p. So p is equals to ampersand c, p arrow get d, p arrow show d. This is finished. So simply in this way you can create a pointer for the object. You can create a pointer for the object. Bas, very simple. Only you have to focus for just a minute that what we are doing. Okay. Now this is over. Suppose you want execution, I will show you. Up till that, we will take another program to create a pointer for the data member. Now the same thing that just we discussed. So to create a pointer for data member, what we done? First we take a class sample, very simple program. Then we taken three data members, that is A, B and C, or instead of this, first let's execute that program. Now it's available. So here we have to enter the name. So name is okay. In this way we can implement the program for anything, whatever you want. Only the thing is that we are accessing the functions using the pointers. Okay, nothing than that. So whatever the programs you have implemented a fill, you can implement all those programs using the same thing, using the pointer. So you don't have to make a changes in the upper part, only you have to make a change in main only. Okay. So this is a very simple one. Or I will write a very simple program for you here. Very simple. Hash include iostream, then using namespace std. वेरी सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास सैंपल ले गया, जो कुछ भी आपको लेना है, और यहाँ पे पब्लिक में हम जाते हैं, पब्लिक में मैं सिर्फ एक ही के लिए बनाता हूँ बस ए, और यहीं पे वाइट शो करके एक बना देता हूँ, वाइट शो, और शो में ही मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू रीड कर लेता हूँ यहाँ पे, enter value of e. ये कर देता हूँ, सेव भी कर देता हूँ, So this is a very simple one. Mana, what we have done, we have taken only one data member. So this is a very simple program for the understanding. Okay, and now here we are going to create a main. Inside the main, now you have to create sample s. Now what we want, we have to create a pointer for the data member. So as I told you, what you have to write first,
इक्वल्स टू, इसका पॉइंटर बनाना है, ए का बनाना है, इसलिए यहाँ पे लिख दो एम्परसेंड ए। क्या नाम से बनाएंगे आप पॉइंटर? स्टार पी ए, यहाँ पे लिख दो स्टार पी ए। अब सोचो कि ये कौन से क्लास का है, क्योंकि अभी हम ए को क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा कि भाई ये ए कौन से क्लास का है। सो दैट्स व्हाई हियर वी आर राइटिंग सैंपल। तो ए अगर सैंपल का है तो स्टार पी भी किसका रहेगा? सैंपल का ही रहेगा। और इसका टाइप क्या है? ए का इंटीजर है, इसलिए स्टार पी ए का भी क्या रहेगा? इंटीजर ही रहेगा। फिनिश। ओके, ये आपने क्या बना लिया? पॉइंटर बनाया। और अभी आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप ये नहीं भी चाहते हो, अगर मैं काम करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने पॉइंटर यहाँ पे बनाया, तो ये वाले स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने से अच्छा व्हाट आई डू हियर, आई कैन डायरेक्टली असाइन द वैल्यू। तो एस डॉट ए इक्वल्स टू, हम पहले ऐसे करके देखते हैं नॉर्मली, एस डॉट ए 45, और इसके बाद एस डॉट शो करते हैं। ओके, तो ये तो नॉर्मली होना ही है, दैट वी नो। सेमीकोलन। So this is value of a is 45. Okay. Now in the same way, now you can do it. Yes dot. अभी कौन सा है हमारा? ये तो नॉर्मल वाला था। अभी हमारा पॉइंटर हमने बनाया स्टार पी ए। तो ए की जगह अभी कौन है? स्टार पी ए है। So s डॉट स्टार पी ए। ओके, इक्वल्स टू हम कौन सी वैल्यू डालेंगे? 50 वैल्यू डालेंगे, और फिर इसको एक्सेस करेंगे s डॉट शो से। हो गया, वेरी सिंपल। पहले हमने नॉर्मल डेटा मेंबर यूज किया, फिर हमने पॉइंटर डेटा मेंबर यूज किया। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया। पहले नॉर्मल डेटा मेंबर करके शो को कॉल किया, फिर हमने पॉइंटर डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन की, फिर हमने शो को कॉल किया। तो ये देखो, वैल्यू ऑफ इज 45, वैल्यू ऑफ इज 50। ओके, सो इन दिस वे, वेरी सिंपल प्रोग्राम, वेरी सिंपल प्रोग्राम। Get a pointer for a data member. This is another program. So I hope you got it. Now I will make a very simple change. ये समझ में आ गया होगा सबको, आई होप। अभी मैं ये वाला निकाल देता हूँ पार्ट, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो आप लोगों ने किया ही है बार बार। यहाँ पे आता हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एस के लिए हमने एस के थ्रू एक्सेस किया। अभी इसका भी हम क्या करते हैं, पॉइंटर बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाते हैं, स्टार पी एस। ओके, और क्या करते हैं, जब भी पॉइंटर बनता है तो पी एस इज इक्वल टू एम्परसैंड एस, पी एस इज इक्वल टू एम्परसैंड एस। ओके, पी एस इज इक्वल टू एम्परसैंड एस, माना ये सैंपल आपका क्लास नेम, ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए आपने पॉइंटर बनाया स्टार पी एस। अब ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे नहीं बनाते हम लोग, ये ध्यान में रखो। दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ पॉइंटर फॉर अ डेटा मेंबर और फॉर अ मेंबर फंक्शन, नॉट फॉर द ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका तो क्लास नेम उसके सामने आ जाता है, लेकिन डेटा मेंबर ऊपर था और उसको यहाँ पे कर रहे थे, इसलिए ऐसा लिखना जरूरी था। तो ये स्टार पी एस और पी एस इज इक्वल टू एम्परसैंड एस। नाउ यू आर हैविंग, इंस्टेड ऑफ एस यू आर हैविंग अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट दैट इज द पी एस। अभी आपका लेफ्ट साइड क्या है, आपके लिए पी एस है, तो यहाँ पे एस की जगह क्या लिखना है आपको, क्योंकि आपका क्या है, लेफ्ट साइड भी आपने पॉइंटर बना के रखा हुआ है, और आपका राइट साइड जो डेटा मेंबर रहता है वो भी आपने पॉइंटर बना के रखा हुआ है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि लेफ्ट साइड भी पॉइंटर है, राइट साइड भी पॉइंटर है, तो फिर क्या करना पड़ता है, यूज एरो स्टार यूज करना पड़ता है। ये आपको याद आना चाहिए। जब क्या है, दोनों है, दोनों पॉइंटर, लेफ्ट भी पॉइंटर है, राइट भी पॉइंटर है, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एरो स्टार। और अब ये शो है, तो शो अभी इसकी जगह कौन आएगा, पी एस आएगा। तो ये भी आपको याद आना चाहिए कि अगर मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और राइट नॉर्मल है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एरो यूज करता हूँ। माना दोनों पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर है तो एरो स्टार, लेफ्ट पॉइंटर है तो ओनली एरो। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस। वैल्यू ऑफ ए इज 50। तो वेरी सिंपल। और वही अगर आप यहाँ पे भी करते हो, अगर आपने नॉर्मल वाला ले दिया एस डॉट, जैसे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने किया था,
वो वाला भी आप यहाँ पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सपोज यू वांट दैट आल्सो, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले एस डॉट ए में आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी 60 या जो भी आपको करना है, और फिर आप एस डॉट शो कर दो। पहले आपको ये 60 वैल्यू, ये तो हमारे टूल्स है, लाइक जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास उनके इक्विपमेंट्स होते हैं। अब हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो हमारे पास ये जो है ये सभी हमारे टूल्स है। सो ड्यूरिंग व्हाट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू यूज, दैट डिसीजन शुड बी टेकन बाय अस कि भाई मुझे कैसे मैं कोड को रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें यू हैव टू लर्न ड्यूरिंग योर प्रोग्रामिंग। सो अब ये कैसा है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ पॉइंटर, सो दैट टाइम योर टाइम एग्जीक्यूशन विल स्लो गो डाउन। यानी जैसे अगर इस नॉर्मल प्रोग्राम के लिए अगर 5 सेकंड या 1 सेकंड लग रहा होगा, तो इसके लिए 0.50 सेकंड ही लगेंगे। सो बिकॉज यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द मेमोरी। ओके, सो दैट्स व्हाई your program will be executed very fast here using the pointers. So value of a is 60 and value of a is 50. This is for the normal, this is for the normal, and this is for the pointer. Okay, so I hope this program is clear to you. Suppose you want the screenshots, print screen. तो ये भी आ जाते हैं आपके लिए डायरेक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर कोड लिखता ही नहीं हूँ यहाँ पे, यू कैन डायरेक्टली चेक इट फ्रॉम हियर। ओके प्रत्यय, इट्स फाइन। यस सर। ऑल्सो गेट द आउटपुट हियर। लेकिन कैसे कि जो बड़े प्रोग्राम रहेंगे तो उनका नहीं आएगा, तो उनका मैं कोड कॉपी करूंगा यहाँ पे। So this is, so in this program you will have a complete program as well as the output also. Okay, so this is over. Then the same program, but that is going to contain the 3 variables, that is the a, b, c. So here you are simply using the get data function. Using the get data function you are reading the values of a and b. Okay, then show data, here we are displaying the addition integer main. So suppose यहाँ पे क्या हो रहा है, s है हमारे पास। ओके, ये निकाल देता हूँ अभी, क्योंकि ये समझाने के लिए था कि जैसे हम उसके लिए बनाते थे नॉर्मल वेरिएबल के लिए, वैसे ही अब आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई किस तरीके से बनाते हैं करके। तो यहाँ पे ये स्टार पी ए बनाया ए के लिए, स्टार पी बी बनाया बी के लिए। देन एस डॉट गेट डेटा आपने कॉल किया जैसे नॉर्मली करते हो, तो एस डॉट गेट डेटा में क्या हो जाएगा, ए और बी का वैल्यू रीड होगा। ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रीड हो गया, किसके लिए, एस ऑब्जेक्ट के लिए। अब आप ये वाली मेथड से भी आउटपुट देख सकते हो। फिर आप एस डॉट सी के थ्रू एस डॉट स्टार पी ए, क्योंकि अभी ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टार पी ए एंड बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्टार पी बी। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड आउट द सम इन एस डॉट सी। और आप यहाँ पे सी लगा, सी का कोई पॉइंटर बनाना है तो आपको सी का भी पॉइंटर यहाँ पे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। You can also create the pointer for C itself, and then you can write here s dot star pc. Okay, so s dot star pc is equals to s dot star pa plus s dot star pb. So you can perform the addition between the pointers. Okay, and pointers are itself representing the data members, so no problem, because ये star pa किसका representation है, a का ही है, star pb किसका representation है, b का ही है। ओके, सो ए और बी में एडिशन हो रही मीन स्टार पी ए स्टार पीबी में, या फिर स्टार पी ए स्टार पीबी में एडिशन हो रही मीन्स ए और बी में एडिशन हो रही है। तो स्टार पी ए मीन्स वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, स्टार पीबी मीन्स वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी, ऐसा है। ओके, और यू कैन डू आल्सो दिस कंपो दैट एस डॉट सी इज इक्वल टू एस डॉट ए प्लस एस डॉट स्टार पीबी। तो ऐसे भी आप एक नॉर्मल डेटा मेंबर के थ्रू और एक इसके थ्रू भी एडिशन कर सकते हो। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन।
So you have to enter the value 12, 45. So addition of 12 and 45 is 57. Okay. This is the program for this one. So now next is give any example to create a pointer for the data member, assume any class. So this is again very simple, but what we have done here that I already taken in the previous program. यहाँ पे हमने a डेटा मेंबर शो में a का वैल्यू किया, सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका पॉइंटर बनाए. दिस ऑलरेडी वी हैव टेकन, दैट इज स्टार ps और ps इज इक्वल टू एम्परसेंड a. ये तो आपको पता है. तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम. नाउ इन दिस प्रोग्राम व्हाट वी आर डूइंग, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मैंने यूज किए हैं. अब वो भी आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे शायद. यहाँ पे क्या किया है, हैश इनटू डायो स्ट्रीम वो पहले वाला जैसा है, सिर्फ यहाँ पे मैंने अलग अलग करके दिखाया था. सैंपल यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ए स्टार पीएस, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर बनाया हुआ है. फिर हमने नॉर्मल डॉट, यहाँ पे डॉट एरो, डॉट स्टार, एरो स्टार, ऐसे सभी कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किए हुए. तो अभी ये एरो स्टार, तो ये सभी डेटा मेंबर्स के लिए है और इसमें कई कई पे फंक्शन कॉल हुए. अब ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग नॉर्मल डेटा मेंबर, वैल्यू असाइन की. फिर ये जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू मेंबर फंक्शन को कॉल किया. फिर हमारा जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट था उसके लिए हमने पॉइंटर डेटा मेंबर में वैल्यू इनिशियलाइज की. फिर ये नॉर्मल ये किया. ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये कौन है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर है. ये कौन है, पॉइंटर डेटा मेंबर है. वैल्यू इनिशियलाइज की और फिर ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल किया लाइक दिस. सपोज यू वांट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, सिर्फ देखना है. सो दिस इज ए के लिए 10 वैल्यू, इसने शो किया वैल्यू ऑफ ए इज 10. देन ए डॉट स्टार पी 20, इसने शो किया वैल्यू ऑफ ए इज 20. फिर ये वाला दोनों पॉइंटर 30 वैल्यू असाइन किया और फिर ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट ने मेंबर फंक्शन को कॉल किया. सो दिस इज 10, 20, 30. ओके. Now the next program. Now this is the program to create pointer for member function. अब तक हम लोगों ने क्या किए, डेटा मेंबर के लिए पॉइंटर बनाए या मेंबर फंक्शन के लिए पॉइंटर बनाए. तो जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हमारे पास कोई क्लास सैंपल है, सैंपल का ऑब्जेक्ट एस है एंड वी हैव सैंपल, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, क्लास सैंपल हैव ऑब्जेक्ट एज एस एंड मेंबर फंक्शन एज शो. नॉर्मली हाउ वी आर राइटिंग एस डॉट शो. Okay, normally how we are writing as dot show. Now what you have to do, you have to create a pointer. You have to create a pointer for the show function. Let's remind how we created a pointer for the data member. तो उसमें हम कैसे लिखते थे, मैंने बोला था आपको कि पहले इक्वल टू लिखना है. इक्वल टू के साइड में आपको जो पॉइंटर बनाना है आप उसको लिखो पहले. तो क्या लिख रहे थे आप, स्टार पीए. ओके. और राइट हैंड साइड में आप लिख रहे थे एम्परसेंड ए लिख रहे थे. फिर आपको पता चला कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, सैंपल को बिलोंग कर रहा है, तो आपने ये लिख दिया. फिर अगर ए सैंपल को बिलोंग करेगा तो स्टार पी भी किसको बिलोंग करेगा, सैंपल को बिलोंग करेगा. अब ए का टाइप क्या है, वही स्टार पी का भी टाइप बनेगा. उसके लिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, फिनिश. सो आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम
in creating a pointer for the data member. This is creation of pointer data member. Now in the same way you have to create a pointer for the show function. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे फंक्शन का नाम क्या है, शो है। फंक्शन का नाम वेरी सिंपल, पहले क्या लिख लिया, इक्वल टू लिख दिया। फिर हमारे फंक्शन का नाम क्या है, शो है। क्योंकि हम शो को मेन में एक्सेस करते हैं, माना क्लास के बाहर एक्सेस करते हैं, तो उसका जो क्लास नेम है वो भी उसके साथ आना चाहिए। जैसे ए के साथ आया, तो शो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, सैंपल को बिलोंग कर रहा है, ये आ गया। फिर से बताता हूँ, इक्वल टू लिखा, इक्वल टू के बाद हमारे फंक्शन का नाम शो। अब ये तो मुझे पता रहना चाहिए कि शो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि वो सैंपल क्लास को बिलोंग कर रहा है। और आपको पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड एम्परसेंड से स्टार्ट होती है। ये आ गया एम्परसेंड, ओके। अब शो के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस होते हैं, ठीक है। तो वो पैरेंथेसिस इधर ना देते हुए हमको कहाँ पे देना है, यू हैव टू गिव ऑन दिस साइड, ओके। नाउ अब यहाँ पे शो के लिए पॉइंटर बनाना है, तो शो के लिए पॉइंटर बना देते हैं स्टार पीएस। फिर अगर शो सैंपल क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो स्टार पीएस भी कौन से क्लास को बिलोंग करेगा, सैंपल को ही बिलोंग करेगा, ओके। तो शो का रिटर्न टाइप वाइट था, तो स्टार पीएस का भी रिटर्न टाइप कौन सा रहेगा, वाइट ही रहेगा। ये हो गया, आपका बन गया फंक्शन के लिए पॉइंटर बन गया आपका। पहले आप उसको शो से कॉल कर रहे थे, अभी आप उसको किसके थ्रू कॉल करोगे, स्टार पीएस के थ्रू कॉल करोगे। तो अभी हम नॉर्मली कैसे लिख रहे थे, एस डॉट शो लिख रहे थे, अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, एस डॉट स्टार पीएस, सॉरी आपका पैरेंथेसिस। लेकिन ये ऐसे कॉल न करते हुए हमको कैसे करना पड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे, समझा? इज इट क्लियर? So this is creation of pointer for member function. Creation of pointer for member function, and this is calling pointer member function to object. समझा? समझा? पहले ये वाला देख लो थोड़ा सा ध्यान से। इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, एम्परसेंड की जगह एम्परसेंड, सैंपल की जगह सैंपल, स्कोप रेजोल्यूशन की जगह स्कोप रेजोल्यूशन। पहले हमने ए का डेटा मेंबर का पॉइंटर बनाया, तो अभी शो का बना रहे हैं। अब आपको पता है कि शो के बाजू में क्या रहते हैं, पैरेंथेसिस रहते, तो पैरेंथेसिस को कहाँ पे डाल दिया, लेफ्ट साइड में डाल दिया इक्वल टू के। फिर शो का, क्योंकि आपको पता है कि भाई शो के बाद पैरेंथेसिस लगती है, तो पॉइंटर के साथ भी तो पैरेंथेसिस लगेगी, तो स्टार पीएस के साथ पैरेंथेसिस दे दी। शो सैंपल को बिलोंग करता है, तो स्टार पीएस भी किसको बिलोंग करेगा, सैंपल को ही बिलोंग करेगा। शो का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, तो स्टार पीएस का भी रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वाइड रहेगा। तो जस्ट having a comparison for the data member, you can also create a pointer for the member function. The both things are represented to be same. Only you have to focus over the calling the pointer member function. तो ये जो s dot star ps है, इसको हमको कैसे करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसको हमें कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और ये पैरेंथेसिस यहाँ पे देना है। जैसे हम शो के बाद लिखते हैं, जैसे ये शो के बाद, ये शो के बाद पैरेंथेसिस, वैसे यहाँ पे पैरेंथेसिस, सिर्फ जो पॉइंटर और जो ऑब्जेक्ट हो रहा है उसको आपको पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, ओके। वही अगर इसकी जगह आपने अगर एस का पीएस बनाया, पीएस पता है ना आपको, दैट इज अ, सॉरी अभी ये एस का मैं ऑब्जेक्ट, मुझे दूसरा पॉइंटर कुछ अलग बनाना पड़ेगा। जैसे मैं इसका एस का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कुछ, तो भी एसपी बना देता हूँ या फिर पीओ बना देता हूँ पॉइंटर ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड भी पॉइंटर और राइट साइड भी पॉइंटर, तो हम क्या करते हैं, यूज एरो स्टार करते हैं। ये हो गया, दिस इज पॉइंटर ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर मेंबर फंक्शन। PO is
object pointer u is object pointer. So I hope you got it. Look at the data member creation, then you can look at the very simple, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, सिर्फ ए की जगह शो आएगा, स्टार पी की जगह पीएस आएगा। आपको पता है फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस रहते तो पैरेंथेसिस देना है, बाकी सब सिंपल वाइट। कॉल कैसे करते थे, एस डॉट शो करते थे, तो अभी शो की जगह कौन आ गया, स्टार पीएस आ गया। कौन आ गया, स्टार पीएस आ गया। सिर्फ इतना पार्ट को आपको पैरेंथेसिस में डालना है, तो ये पैरेंथेसिस में डाला, उसके बाद जैसे ब्रैकेट्स रहते वैसे के वैसे, वेरी सिंपल। ओके, अब ये हो गया शो वाला। अभी किसी के मन में आऊंगा कि सर अगर पैरामीटर पास करना है तो चलो पैरामीटर वाला देखते हैं। अगर मेरा गेट डेटा करके फंक्शन है, उसमें मैं 2 वैल्यू पास करता हूँ। कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा है, उसमें 2 वैल्यू हो रही है या फिर 1 वैल्यू हो रही है, तो वाइड फिर से वैसे जैसे लिखते हैं आप, इक्वल्स टू, फिर अपना एम्परसैंड, फिर आपके क्लास का नाम सैंपल, फिर आपके क्या नाम है, गेट डी करके है। तो अब इधर तो पैरेंथेसिस डालते नहीं है, हमको पैरेंथेसिस कहाँ पे डालना है, लेफ्ट साइड में, तो ये पैरेंथेसिस डाल दी। अब अज्यूम करते हैं कि गेट डी में आपका कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक ही पैरामीटर पास हो रहा है, इंट कर दिया। अब आपका गेट डी के लिए आपको पॉइंटर बनाना है, तो आपने क्या बना दिया, स्टार जीडी बना दिया पॉइंटर। अब गेट डी अगर सैंपल को बिलोंग करता है तो स्टार जीडी भी किसको बिलोंग करेगा, सैंपल को ही बिलोंग करेगा। अगर गेट डी का आपका रिटर्न टाइप वाइड है तो सैंपल का भी रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वाइड रहेगा। लाइक दिस हो गया। माना क्या किया आपने, सिर्फ यहाँ पे चेंज, आपने क्या चेंज किया कि जो आपका यहाँ पे जो इसके अंदर गेट डी के अंदर जो आपका इंटीजर या जो कुछ भी रहता था वो आपने कहाँ पे, एंड यस दिस एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन, कीप इन माइंड। ओके, एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। तो ये क्या बन गया अभी आपका, ये आपने यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे लिखना था तो उसको राइट साइड में लिख दिया, और ये स्टार जीडी। अब इसको भी आप एक्सेस करोगे, इसको एक्सेस कैसे करोगे, जैसे ऊपर किया वैसे ही, इन ब्रैकेट एस डॉट स्टार जीडी, ये हो गया। और क्या वैल्यू पास करनी है आपको, 34 करना है, सपोज एक ही वैल्यू पास करनी है या 2 करना है। अगर आपको 2 करना है तो यहाँ पे इंट कॉमा इंट, और यहाँ पे 34 कॉमा 45, जो भी वैल्यू आपको पास करनी है वो वाली वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डेटा मेंबर we created a pointer for the member function. You can compare this both statements equal to ये सब। फिर कॉल कैसे करना है, तो एस डॉट स्टार जैसे इसको करते थे, शो की जगह स्टार पीएस आ गया, सिर्फ इसको क्या करना है, पैरेंथेसिस में डालना है, नथिंग देन दैट। वही एस की जगह आपने ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर आपको पता है दोनों साइड पॉइंटर है तो एरो स्टार यूज करते हैं, अगर राइट साइड वाला पॉइंटर है तो डॉट स्टार यूज करते हैं। ओके, और इसके बाद मैंने बताया अगर आपके पैरामीटराइज, अगर आपका फंक्शन है पैरामीटराइज वाला, तो जो भी आपके पैरामीटर्स है राइट साइड में आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में, क्योंकि अभी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो पॉइंटर मेंबर फंक्शन को। तो गेट डी का तो पता ही है कंपाइलर को, लेकिन अभी आपको पॉइंटर के लिए बताना है, तो जैसे गेट डी के लिए रहता था वैसे अभी किसके लिए रहेगा, इसके लिए रहेगा, इंटीजर आपके आप, क्योंकि गेट डी की डेफिनेशन तो ऑलरेडी ऊपर में रहेगी आपकी, और वहां पे तो आपने लिखा हुआ ही रहेगा इंट कॉमा इंट वगैरह जो कुछ भी है। ओके, तो ये स्टार जीडी लग गया, यहाँ पे इंट लग गया वाइट सैंपल, और अभी जैसे पहले किया था एस डॉट स्टार जीडी 34, और आप वो जो और दूसरा था वैसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई पी ओ एरो स्टार जीडी, ये हो गया, और इसके अंदर आपने कोई वैल्यू डाल दी 45, दिस इज, आपको पता चल गया, एंड दिस इज द डिफरेंट। ओके, सो यू जस्ट चेक इट, एक बार देखो, 2 मिनट बराबर ध्यान लगा के, 2 मिनट के बाद जस्ट हम इसके ऊपर प्रोग्राम देखते 3-4। ओके, देखो तब तक 2 मिनट के लिए।
So any problem with this one? So let's see, very simple program. Hash include sample as I mentioned in the previous one. इसके पहले हम ये वाला देखते हैं. I think I have not tested that. Okay. एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ दूसरा, या फिर उधर लिखता हूँ डायरेक्ट शो वाला उसमें. Am I audible? Yes, sir. ये आपका क्लास सैंपल पब्लिक इंटीजर ए शो वैल्यू ऑफ ए. ओके, यहाँ पे हमने बनाया सैंपल का एस बनाया सिंपल. ओके, और फिर मैंने एस डॉट ए में वैल्यू, अब मैं ज्यादा उसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाए उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो. यहाँ पे आप यस का पॉइंटर भी बना सकते हो, ए का भी पॉइंटर, डेटा पॉइंटर बना सकते हो ए का. अब वो आपके ऊपर है क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं बनाना है. मुझे अभी सिर्फ आपको उसका मेंबर फंक्शन का पॉइंटर बना के बताना है. तो ये इक्वल टू आया, फिर आपका एम्परसेंड आया, और फिर आपका क्लास नेम है सैंपल स्कोप रिजोल्यूशन शो. ठीक है, और अभी राइट लेफ्ट साइड में आएंगे. तो आपने शो के लिए कौन सा पॉइंटर बनाया, स्टार पीएस सपोज, स्टार पीएस. ये पैरेंथेसिस रहेंगे, जो इधर में जो पैरेंथेसिस थे शो के बाद जो रहते वो इधर आ गए, क्योंकि अभी हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे सैंपल. ओके, और शो का टाइप क्या था. अब देखो यहाँ पे शो की डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर है ही, कंपाइलर को पता है. अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हियर वी आर इन्फॉर्मिंग द कंपाइलर दैट फॉर अ शो फंक्शन वी आर क्रिएटिंग अ पॉइंटर. तो शो के पास तो पैरेंथेसिस ऑलरेडी ऊपर है ही, अभी हमको किसके लिए देना पड़ेगा, पीएस के लिए देना पड़ेगा, इसलिए इसके लिए पीएस के लिए यहाँ पे दिए हैं. ओके, और जैसे शो सैंपल को बिलोंग कर रहा है वैसे ये पीएस भी किसको बिलोंग करेगा, सैंपल को. शो का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, वैसे पीएस का भी क्या रहेगा, वाइड रहेगा. ओके, and now you can directly make a call s dot star ps. ये दोनों आपको पता है, ये पूरा का पूरा जो कॉलिंग पार्ट है ये ब्रैकेट में रहेगा, और इसके बाद जो नॉर्मल हमेशा पैरेंथेसिस रहते हैं हमारे वैसे फिनिश. यू कैन टेक द आउटपुट. स्टार पीएस एरर, cannot declare pointer to void main goal. यस, इसको भी हमें पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा इसको. ओके, नाउ यू कैन रन इट. सी वैल्यू ऑफ 34. तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट था, जैसे यहाँ पे जो ये s डॉट स्टार पीएस कर रहे हैं, वैसे ही जो इधर वाला पैरेंथेसिस के पहले वाला पार्ट जो रहेगा, इसको भी हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस में डालना है. तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा. उसके वो लिए नहीं था डेटा मेंबर के लिए, लेकिन मेंबर फंक्शन के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. यहाँ पे भी, यहाँ पे, okay, that is going to represent your function, so that's why this part should be enclosed inside the parenthesis. चेंज समझ में आ गया. जो हम लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट था हमारा, उसको हमने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस में डाल दिया. यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डेटा मेंबर में नहीं रहता, क्योंकि डेटा मेंबर तो हमारा नॉर्मल ही है, लेकिन फंक्शंस के लिए हमको इतने पार्ट को इसके अंदर डालना पड़ेगा. अभी आप देख सकते हो इस प्रोग्राम में हमने नहीं डाला था, तो इट इज गिविंग द एरर दैट इट इज नॉट फाइंडिंग, इट इज नॉट एबल टू फाइंड द स्कोप. क्योंकि ये क्या है, ये पीएस के लिए स्टार पीएस ऐसे ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार पीएस के साथ ये चिपक गया, तो फिर इसको इसका ये नहीं मिल रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है वहां पे स्कोप. दैट्स व्हाई दिस नीड्स टू बी एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस. और ये इसलिए इसको किया, इसीलिए हम यहाँ पे भी इसको पैरेंथेसिस में ही एनक्लोज कर रहे हैं. यू कैन चेक. सो दिस विल बी द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम. वैल्यू ऑफ ए इज 34 यहाँ से हमने इनिशियलाइज की. अब इसी प्रोग्राम में आप चेंजेस कर सकते हो. यस का आप क्या बना सकते हो, पॉइंटर बना सकते हो. जैसे ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से दूसरा ले लेते हैं सपोज, या फिर पहले मैं आपको इसको ही कर देता हूँ उधर में, so that confusion will not get created.
फिर इसी प्रोग्राम में हम दूसरा चेंज करते हैं, जैसे सैंपल एस के लिए हो गया, वैसे ही अगर आपको यहीं पे बनाना है सैंपल एस के बाद कॉमा स्टार पीएस ऑलरेडी बन गया, पीओ बनाते हैं, फिर आपको पता है पीओ इज इक्वल टू एम्परसैंड एस, और आपको सिर्फ क्या करना है, एस की जगह किसको यूज करना है, पीओ को यूज करना है, पीओ स्टार पीएस एरो फिनिश। बाकी कोई चेंज ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके लिए था और हमने सिर्फ पीओ पॉइंटर बनाया इसके लिए, तो ये पीओ एरो स्टार पीएस वैल्यू ऑफ इज 34। ये वाला प्रोग्राम था हमारा एक्सेस pointer member function using normal object। ये हो गया आपका। इसी तरीके से ये भी प्रोग्राम था, वो भी हम देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसमें आप एक और चेंज करके बताता हूँ। तो जैसे ये जो था, यहाँ पे हमने एस के लिए बनाया, एस डॉट ये किया, ये हो गया। फिर आप दूसरा भी बना सकते हो यहाँ पे नॉर्मली, जैसे मुझे यहाँ पे पहले बताना था कि भाई नॉर्मली करके, नॉर्मली भी करते हैं हम लोग, और फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कोड भी आपको कॉपी करता हूँ और वो स्क्रीनशॉट भी, क्योंकि अगर मुझे कभी कोड लिखने की जरूरत है तो मुझे फिर से पूरा प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस के लिए आप नॉर्मली डेटा मेंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और फिर सैंपल का ही S1 बना के, S1 के लिए पॉइंटर बना के फिर आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो। माना एक ही प्रोग्राम में आप शो कर सकते हो कि नॉर्मल डेटा मेंबर के थ्रू भी हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उसी सैंपल क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना के उसका पॉइंटर बना के फिर आप ये ऐसे शो कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि भाई कितना कंसेप्ट मुझे मेरे दिमाग में पूरा मर्ज हो गया है, कितना मुझे समझा है, and depending upon that you can variations in your program। Okay, now next is that get d1 in which we can pass the parameters। एंटर ऑब्जेक्ट है, पहले हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाएंगे। ये डेमो प्रोग्राम है सिंपल, अभी हमारा ये सैंपल है एस। ओके, फिर हम क्या बनाएंगे, इसके लिए पॉइंटर बनाएंगे मेंबर फंक्शन के लिए। तो आपको पता है क्या आएगा, सबसे पहले इक्वल टू, फिर आपका आएगा एम्परसैंड, फिर आएगा क्लास का नाम सैंपल, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नाम गेट डी। अब इधर तो देते नहीं है, तो पैरेंथेसिस कहाँ पे जाएंगे, इधर में आएगी, और इधर में अभी गेट डी, यहाँ पे तो आपने लिख दिया इंटीजर एक्स, और अभी आप गेट डी के लिए पॉइंटर बना रहे हो, तो पॉइंटर के लिए भी तो बनाना पड़ेगा कि भाई उसके साथ क्या है, कितने पैरामीटर्स है, उसका टाइप क्या क्या है, आ गया इंटीजर। और अभी इसके लिए पॉइंटर बनाओ, तो पॉइंटर क्या बनाएंगे, स्टार जीडी बना देते हैं। तो ये अगर गेट डी अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो स्टार जीडी भी किसको बिलोंग करेगा, सैंपल को बिलोंग करेगा। और अगर गेट डी का रिटर्न टाइप वाइड है तो सैंपल का भी रिटर्न टाइप करेगा वाइड रहेगा। अगर कोई फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, कीप इन माइंड। तो अभी आपका क्या बन गया, ये पॉइंटर बन गया स्टार जीडी, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे।
हो गया पॉइंटर। अभी गेट डी की जगह हमारे पास कौन है? अगर आप नॉर्मल एक्सेस करते थे तो एस डॉट गेट डी और उसमें वैल्यू पास करते थे, अगर आप नॉर्मली करते थे तो वो भी हम करते हैं यहाँ पे एस डॉट गेट डी, यहाँ पे अपने वैल्यू पास कर दी, कोई 45। ओके, ये हो गया आपका उसके थ्रू। और फिर हम दूसरा करेंगे पॉइंटर मेंबर फंक्शन के थ्रू। उसके लिए आपको पता है पैरेंथेसिस के अंदर एस डॉट स्टार जेडी, ये हो गया आपका इतना पार्ट। और यहाँ पे आके आपको पैरेंथेसिस में वैल्यू डालना है कोई तो भी अलग, ये हो गया एंड दिस इज फिनिश। समझा? सैंपल एस ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए पॉइंटर मेंबर फंक्शन बनाया, उसके बाद नॉर्मली हमने कॉल किया जैसे नॉर्मली करते हैं, और उसी के कंपैरिजन में फिर हमने पॉइंटर के थ्रू देखा भी कैसे करते हैं। देखो ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, सिर्फ जो पॉइंटर बनाया उसके पार्ट को हमने पैरेंथेसिस में यहाँ पे डाला हुआ है। रन करो, पहले 45 के लिए रन होगा, फिर 60 के लिए रन होगा। प्रोग्रामिंग करते हो कैसा है कि एंजॉयमेंट आना चाहिए कि हाँ भाई चलो हो रहा है। एरर आ रहे तो फिर डिप्रेस भी नहीं होना है कि एरर ही आ रहे, एरर ही आ रहे। उसको लिखो, देखो क्या प्रॉब्लम जा रहा है, कौन सी लाइन नंबर आती है, वहां पे लाइन नंबर देखो, उस तरीके से। कंट्रोल सी, और दिस इज अनदर प्रोग्राम टू access pointer member function with parameters using object pointer। वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है, इसको ही बनाते हैं हम, लेके चेंज करते हैं। तो देखो क्या बन गया अभी, ये तो पहला पार्ट हो गया इतना, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें पॉइंटर बनाना है, किसका? एस का पॉइंटर बनाना है, कॉमा क्या बनाएंगे एस का पॉइंटर? स्टार पीएस। नाम भी देखना है, वही वही नहीं आने चाहिए, तो फिर इसका भी आपने बनाया तो वही पीएस और इसका भी वही पीएस, ये आ गया। और फिर पीएस इज इक्वल टू एम्परसैंड एस। ओके, अभी हम एस डॉट गेट डी नॉर्मली कर रहे थे, अभी हमारे पास एस की जगह कौन है? पीएस है। लेफ्ट भी पॉइंटर है और राइट भी पॉइंटर है, इसलिए डॉट की जगह कौन आएगा अभी यहाँ पे? यहाँ पे आएगा एरो। तो ये दिमाग में फिक्स, डॉट माना दोनों नॉर्मल, डॉट स्टार माना राइट राइट पॉइंटर, एरो माना लेफ्ट पॉइंटर, एरो स्टार माना लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर। यू कैन एग्जीक्यूट दिस। पहले 45 के लिए आएगा, फिर 60 के लिए। सेम वैल्यू चेंज करना है तो वैल्यू चेंज कर सकते हो। आप मैसेज भी डाल सकते हो, है नॉर्मल ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग नॉर्मल मेंबर फंक्शन। इस तरीके से माना हमारी समझ के लिए। ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग इंटर मेंबर फंक्शन, उसका आउटपुट हमें जब प्रोग्राम लिखेंगे तब हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब ये सिर्फ हमारे समझ के लिए है। ओके, आई होप यू गॉट इट।
अब यहाँ पे थोड़े प्रोग्राम कुछ अलग आ सकते हैं और मैंने लिखा हुआ कुछ अलग हो सकता है। कॉपी कर देता हूँ। ओके, नाउ अब तक तो हमने डेमो प्रोग्राम ही देखे, लाइक सैंपल वगैरह ऐसे वगैरह वैसे वैसे ये सब देखे। नाउ इन योर सिलेबस लाइक इन फोर्थ यूनिट वहाँ पे ऐसे बोला हुआ है कि लाइक आपके पॉइंटर के प्रोग्राम आपको बनाने आने चाहिए सर्चिंग के ऊपर, सॉर्टिंग के ऊपर या फिर स्ट्रिंग के ऊपर। तो अभी हम वही पार्ट देखने वाले कि लाइक स्ट्रिंग के लिए भी हम कैसे पॉइंटर माना, like you have seen in C language you are having a unit of strings, and in that string we done all the operations, means using the user defined functions. We have implemented the user defined functions for to find the reverse of a string, for concatenation, for comparison, to find the length of a string. That all we have done. अब यहाँ पे क्या करना है, वो जो हमारे फंक्शन थे वही हमको यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। माना जो हमने स्ट्रिंग वाला जो वहां पे जो बनाया था लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, वही अभी हम यहाँ पे बनाएंगे, वही अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, बट यूजिंग द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको तो पता है कि जब स्ट्रिंग लगती है तो हम क्या करेंगे, एक str करके एक स्ट्रिंग लेंगे, जैसे नेम लेते हैं। ओके, एंड मेंबर फंक्शन एज गेट डेटा, स्ट्रिंग रीड करने के लिए, शो डेटा लेंथ और स्ट्रिंग शो करने के लिए, और एक कैल लेंथ आना चाहिए था यहाँ पे, कैल लेंथ। Display the string and its length, create pointer for str and using pointer calculate the length of a string. Okay, तो सबसे पहले क्लास, ये क्लास स्ट्रिंग, इसमें क्या है, ये str जैसे आप नेम लेते हो, और स्टार पी ये स्ट्रिंग के लिए, स्टार पी किस लिए है, str के लिए, और ये int l, क्योंकि आपको पता था, अगर आपने पहले प्रोग्राम देखे होंगे तो उसमें भी जब हमने स्ट्रिंग पास की थी तो मैंने वहां पे लिखा था कैर स्टार पी वगैरह ऐसे कुछ लिखा था मैंने, जब हमने स्ट्रिंग पास किए थे। तो ओके, इनिशियलाइज करके नीचे से कंस्ट्रक्टर पे भी डेटा पास किया था, तो आप वहां पे रेफरेंस ले सकते हो। तो दिस इज योर स्ट्रिंग, दिस इज योर पॉइंटर फॉर द स्ट्रिंग एंड एल। ओके, फिर ये तीन फंक्शन गेट डेटा, कैल लेंथ, शो डेटा। आपको पता है गेट डेटा में सी आउट एंटर स्ट्रिंग, सो यूजिंग गेट लाइन वो रीडिंग द स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सादा सीन करते हैं तो व्हाइट स्पेस के बाद जो भी डेटा रहेगा वो पूरा स्किप हो जाता है। अगर आपका व्हाइट स्पेसेस के साथ अगर स्ट्रिंग को रीड करना है, जैसे आपका नाम है कुछ तो भी शिव स्पेस शक्ति, तो अगर आप एक गेट लाइन फंक्शन यूज करते हो तो आपका शू पे शक्ति रीड होगा। अगर आप सीन करके डायरेक्टली स्ट्रिंग को रीड करते हो तो आपका सिर्फ शू ही वहां पे रीड होगा, वो व्हाइट स्पेस के बाद वाला सब निकल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा गेट डेटा। शो डेटा में देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे str स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया और एल को डिस्प्ले किया। ओके, मेन में आते हैं तो तीनों फंक्शन आपको पता है ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करते हैं, तो एस डॉट गेट डेटा, एस डॉट कैल लेंथ, एस डॉट शो डेटा। तो एस डॉट गेट डेटा के थ्रू आपने क्या कर लिया, स्ट्रिंग को रीड कर लिया, एंटर स्ट्रिंग सी इन डॉट गेट लाइन str 15। ओके, तो अभी ये गेट लाइन का थोड़ा आदत डालो, क्योंकि अब तक हमने जितने भी किए थे नेम और एड्रेस और ब्रांच नेम, कॉलेज नेम, जो भी किया था तो उसमें सब जगह हमने सीन के थ्रू ही किया था, लेकिन वहां पे सीन डॉट गेट लाइन की आदत डालो। ओके, ये गेट डेटा हो गया कॉल, स्ट्रिंग रीड हो गई जो कुछ भी आपने डाली। फिर आप कैल लेंथ पे आए, ये कैल लेंथ। ओके, तो आपको तो पता है कि भाई हमको लेंथ निकालने, तो पहले एल की वैल्यू कितनी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर हमने पी भी लिया था ऊपर, ये पी इज इक्वल टू एम्परसेंड str 0, या फिर ये नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्योंकि बेस एड्रेस ऑटोमेटिकली उसमें स्ट्रिंग का आ जाता है। तो यहाँ पे सपोज हम अज्यूम करते हैं एक स्ट्रिंग शू अज्यूम करते हैं सपोज, ठीक है। तो ये पी में क्या आ गया, एस का बेस एड्रेस आ गया, सपोज एस का बेस एड्रेस होगा 1000 कुछ तो भी। ओके, एस का बेस एड्रेस क्या है, एम्परसेंड str 0, 0 मींस एस, str 0 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एस, एस का एड्रेस कितना है, 1000 है यहाँ पे। ओके, फिर हमने लूप चलाया, व्हाइल इन ब्रैकेट स्टार पी इज नॉट इक्वल टू बैचलर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपकी स्ट्रिंग एंड होती है, दैट एंड इज हियर टर्मिनेटेड बाय द \0, दैट इज अ नल कैरेक्टर। Strings are always terminated by a \0, that is a null character.
तो हमें ये कब तक करते चलना है, जब तक कि बैकस्लैश 0 नहीं मिल जाता। जब तक कि बैकस्लैश 0 नहीं मिल जाता तब तक हम व्हाइल करते रहेंगे। तो ये पहले हमने क्या कर दिया, पहले L++ करना चाहिए या P++ करो, नो प्रॉब्लम, L++ भी कर सकते हैं। Here you are doing L++, ओके। तो जैसे स्टार पी इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 माना, S इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, कंडीशन ट्रू है, तो L की वैल्यू जो 0 जब कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई 1 हो गई, और P इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, अब नेक्स्ट कैरेक्टर स्टार पी S रिप्रेजेंट करेगा, कर रहा था, अभी कौन करेगा, H को रिप्रेजेंट करेगा, P++ हो गया, माना स्टार P वैल्यू एट, ये देखो यहाँ पे P माना क्या है, एड्रेस ऑफ str0, तो एड्रेस ऑफ str0 कितना है, 1000 है, माना P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू एट 1000 क्या थी हमारी, S थी, वैल्यू एट 1000 कितनी थी, S थी, ओके, वैल्यू एट 1000 इज S, so S is not equal to बैकस्लैश 0, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आए, 1 हो गई, फिर P 1000 प्लस प्लस, तो ये कितना हो गया, 1001 हो गया, कितना हो गया ये, 1001 हो गया, ओके। फिर से यहाँ पे आए, वैल्यू एट 1001 इज H, कंडीशन ट्रू, कितना हो गया ये, 2 हो गया, 2 हो गया, फिर से P++, ये 1002 का कितना हो गया अभी, 1003 हो गया, फिर यहाँ पे आए, वैल्यू एट 1003 कितना है, I है, I इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, कंडीशन 3, ये कितनी हो गई, 3 हो गई, फिर से यहाँ पे आए, ये 1003 का कितना हो गया, 1004 हो गया, सो वैल्यू एट 1004 इज V, V इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, फिर आपका P क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, 1005 हो गया, फिर आप यहाँ पे आए, वैल्यू एट 1005, नाउ यहाँ पे बैकस्लैश 0 है, so value at 1005 backslash 0, backslash 0 is not equal to backslash 0, condition false, क्योंकि backslash 0 is equal to backslash 0, आप क्या बोल रहे हो, backslash 0 is not equal to backslash 0, so condition false, condition false है तो आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे आए, L की वैल्यू कितनी थी लेटेस्ट, 4 वैल्यू थी, बाहर आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके फिर आप गए यहाँ पे, फिर शो डेटा में आए, फिर शो डेटा में आपने बताया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शू is equals to 4. Got it? Let's execute it. तो ऐसे एरर निकल के आनी चाहिए, क्या बोला उसने, यहाँ पे उस जहाँ पे एरर है उसके नीचे वैसे ही बताता है, तो आपका यूजिंग में क्या हो गया, स्मॉल यू चाहिए, फिर और देखते हैं कहीं पे एरर होगा तो, नो एरर, सो एंटर स्ट्रिंग, सो हियर यू कैन से शिव शक्ति, कितना हो गया, 4 5 और 6 11, सो सी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शिव शक्ति इज इक्वल टू 11, got it? Okay, so in this way you can execute the programs. अभी इतना सारा तो आता नहीं इसमें, अब आप लोग देखो कैसे क्या करना है, तो फिर मुझे थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा इससे, उसमें भी वो नहीं आएगा। तो मैं इतना पार्ट आपको वहाँ पे कॉपी करके दे देता हूँ, आपको लगेगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है।
Okay, so in this way you can execute the program. So just like to find the length of a string, अभी आप लोगों को क्या करना है घर पे, इसके क्या लॉजिक्स है पॉइंटर्स में, सी का पॉइंटर निकालो टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, टू कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग। तो ऐसे जो स्ट्रिंग के ऊपर के अलग अलग फंक्शन है, टू जॉइन द टू स्ट्रिंग्स, ये सब फंक्शंस के आप लॉजिक पता करके रखो, क्योंकि आगे के सब प्रोग्राम वैसे ही है, जैसे ये हो गया वैसे ही है। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, कि आपको एक एरे रीड करना है, दैट इज इंटीजर एरे। ओके, और उसमें आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा है, जैसे आपने एरे में अगर 10 नंबर डाल दिए, ये एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है, तो उसमें क्या करना है आपको, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। डेटा स्ट्रक्चर में शायद पहले यूनिट में दूसरे यूनिट में होगा। सो हियर यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर अमंग द 10 नंबर्स। तो इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने आपकी एरे रीड कर ली 10 नंबर की। ओके, तो यहाँ पे str नाम दिया, आप दूसरा भी कोई ए एरे या फिर जो भी आपको देना है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर आपने शो में लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे शो कर दिया, फिर आपने एल डॉट गेट डेटा, एल डॉट मैक्स, एल डॉट शो डेटा। तो हमारे लिए जो मेन है ये यही है, इतना पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो पहले तो आपको पता नहीं है कौन सा है, तो सबसे पहले हमने लार्ज में वैल्यू क्या कर दी, 0 डाल दी। ओके, फिर जो हमारा पहला नंबर था उसका ये पॉइंटर हमने पी बनाया, क्योंकि आपको ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है पॉइंटर के थ्रू। अब हमारे पास कितने नंबर है, क्योंकि हमने को जो हमने लार्जेस्ट नंबर जो लिया ये वाला, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हर नंबर के साथ चेक करना पड़ेगा। ओके, और जो जो जैसे पहला नंबर है, अगर यहाँ पे आपके एरे होंगे कुछ तो भी, सपोज कि आप कहूँगा 10, मैं पूरे नहीं लिखता हूँ, 34, फिर 56, 23, फिर आपका 67, फिर आपका 43। ठीक है, ऐसे 10 एलिमेंट होंगे, मैंने 10 नहीं डाले, या फिर हम इतने लेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, 56 निकाल के मुझे उतने फिल्ट्रेशन चलाने पड़ेंगे। 4 चला के बताता हूँ, बाकी तुम लोग देख सकते हो। ओके, तो ये 4 नंबर हो गए सपोज। अब पहला नंबर 10, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर दैट इज 10। तो सपोज अज्यूम करते हैं कि 1000 होगा इसका एड्रेस। तो पी में क्या आया, 1000 आया। अब आपको पता है कितने बार करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा, इसलिए आपने 10 का लूप लगाया। इफ वैल्यू एट 1000, तो वैल्यू एट 1000 क्या है, 10 है, इज ग्रेटर देन लार्जर। लार्जर की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। लार्जर की वैल्यू कितनी है, 0 है। सो 10 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू, तो लार्ज फोन बन जाएगा। जो 0 था अभी लार्ज फोन बन गया, 10 बन गया, माना कंडीशन ट्रू होगी तभी लार्ज की वैल्यू चेंज होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये p प्लस प्लस अभी 1000 पर 1002 बन गया। यहाँ पे अंदर आए i की वैल्यू, क्योंकि हमें 10 तक चलाना है इटरेशन, तो i की वैल्यू 1, ये तो आपको पता है, एक एक बढ़ता जाएगा। सो वैल्यू एड कितनी हो गई हमारी, 1002। तो वैल्यू एड 1002 कितने, 56। 56 ग्रेटर देन लार्जर, यस 56। 10 से अभी लार्जर की वैल्यू, रिसेंट वैल्यू क्या है, 10 थी। सो 56 इज ग्रेटर देन 10, सॉरी ये 56 ग्रेटर देन 10, यस, कंडीशन ट्रू, तो लार्ज फोन बन गया, 56 बन गया। ओके, फिर भी आपका इंक्रीमेंट हुआ, 1004 पे गया, ये अंदर आए, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे आए, वैल्यू एट 1004 कितना है, 34 है। तो 34 इज ग्रेटर देन 56, नो, कंडीशन फॉल्स। फिर से यहाँ पे आया, माना अभी आपकी वैल्यू क्या है, लार्ज वाली 56 ही है। फिर आपका 1006 हुआ, यहाँ पे आए, वैल्यू एट 1006 इज 23। So 23 is greater than 56, no, condition false, तो लार्ज की वैल्यू 56 रहे, यहाँ पे आया। ऐसे आते जाएगा, देखते जाएगा, अगर आपके 56 से बड़ी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 75 वैल्यू अगर मिल गई, आपकी कौन सी वैल्यू मिल गई, 75 वैल्यू मिल गई, तो 75 इज ग्रेटर देन 56, तो लास्ट वन बन जाएगा आपका 75 बन जाएगा। और ऐसे चलते चलते जो लास्ट लार्जेस्ट वैल्यू रहेंगी वो आपकी लार्ज में स्टोर रहेगी, और जब आपका शो डेटा रहेगा तो लार्जेस्ट एलिमेंट वहाँ पे शो हो जाएगा, लार्ज वैल्यू। Okay, so in this way you can execute this program. वही फिर से स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम, जिसमें हमें क्या करना है, you have to compare the two strings. So we'll take it in the next session. Okay, तो ये वाला प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ।
बहुत सिंपल प्रोग्राम है लिखने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं जैसे प्रोग्राम की लिंक देख के डर नहीं जाना है हमको। अब ये वाले जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉइंटर वाज वी I teach you how to create a pointer for the data members, how to create a pointer for the object, how to create a pointer for the member function. That is the part. Now here in this part, what we are doing, we are creating a pointers for the operations. This here we are making a use of pointers to do the operations. तो यहाँ पे देखो हम pointer को क्या कर रहे हैं, operations के लिए यहाँ पे use कर रहे हैं। यहाँ पे अभी नंबर पूरे 10 डालना पड़ेगा मेरे को, तो मैं काम करता हूँ 10-20 भी डाल देता हूँ। आगे the largest element in the array is 9। रुक गया अभी, काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, 5 के लिए लेता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। उसने पूछा भी है मेरे को कितने नंबर ऑफ, तो 3 ही डालता हूँ मैं यहाँ पे 3 डालने के बाद 12, 56, 34। लार्जेस्ट एलिमेंट इज 56, यू कैन चेक। ओके, एंड दिस इज योर प्रोग्राम। अभी इसमें तो इतने सारे ये करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। तो मैं तो यहाँ पे आपको जो एग्जीक्यूटेबल ही है ये प्रोग्राम, क्योंकि कोड तो वहाँ पे लिखा हुआ है आपका, नो प्रॉब्लम विद दैट। So in this way you can execute the programs. Okay, so let's revise it within 5 minutes. So we started with exploring the programs for the pointer in C++. So you come to know how to create an object for a pointer. So this is your object. You have to create a pointer star p. So simply you have to write p is equals to ampersand c, and then p arrow get d, p arrow show d. Normally we are doing like c dot get d, c dot show d. Now with the help of pointer object, you can do like p arrow get d, p arrow show d. Now there are 4 operators, that is dot, dot star, arrow, arrow star. The dot means both side normal, dot star means right side pointer, arrow means left side pointer, and arrow star means both side pointer. Very simple. Dot, both simple, dot star, right, arrow, left, arrow star, both pointer. Okay. Then we have seen how to create a pointer for the data member. तो जैसे नॉर्मली करते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वल टू के साथ चलना है, एम्परसैंड ए लिख देना है सबसे पहले आपको। ओके, और ए के लिए कौन सा पॉइंटर बना रहे, स्टार पी ए, तो फिर ए बिलोंग करेगा क्लास सैंपल को, तो स्टार पी भी कौन से क्लास को बिलोंग करेगा,
सैंपल को बिलोंग करेगा। ए का टाइप इंटीजर है तो स्टार ए का भी टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, क्योंकि ए तो आपके कंपाइलर को पता ही है। अब आप ए के लिए स्टार पी बना रहे हो, इसलिए ये सब बताना जरूरी है कि भाई ए अगर सैंपल को बिलोंग करता है तो स्टार पी भी किसको बिलोंग करेगा, सैंपल के लिए टाइप करेगा इंटीजर। तो ये एस डॉट ए 45 तो एस डॉट शो, तो ये नॉर्मल जो हमेशा करते थे, अब ये एस डॉट ए की जगह स्टार पी 50 और फिर एस डॉट शो नॉर्मली द प्रोग्राम। Now in this program, you have created pointer for the two data members and you perform the addition between them. So normal addition, pointer addition, and one normal addition and one pointer addition. This is the program. This is the execution of that program. तो ये pointer for data member वैसा ही, ओके। इसको आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जैसे अभी बताया, डॉट ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग नॉर्मल डेटा मेंबर, डॉट स्टार ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर डेटा मेंबर, एरो स्टार एरो pointer object accessing normal data member, and arrow star objecting pointer object accessing pointer data member. Okay. Now then we have seen how to create a pointer for a member function. Actually, see, pointer for a member function, I think there is not, this thing is not in your syllabus, but still as you are a software developer, we must know how to create a pointer for the member function. Even suppose you are going to refer the different websites, it is not mentioned there that how we can create a pointer for a member function. You can check out the website like Tutorial Point, Code Guru, कौन सी प्रोग्रामीज और कौन सी वेबसाइट है, W3 Schools और क्या क्या है, तो आप उसमें देख सकते हो. But like this way, this thing is not mentioned over the websites. Okay, so for that you have to refer the different books. Only that time you come to know. Okay. So just like a normal data member, we can create a pointer for a member function. तो equal to की जगह equal to, ए की जगह भी कौन किसका बना रहे, शो का बना रहे, तो शो बिलोंग टू क्लास सैंपल, एम्परसेंड यहाँ पे जैसा था वैसे ही. अभी इसके लिए शो के लिए कौन सा बनाया आपने, स्टार पीएस बनाया. तो इसको जो पैरेंथेसिस रहती है हमको इसको भी पॉइंटर को देना पड़ेगा. और स्टार पीएस कौन से क्लास को बिलोंग करता है, सैंपल को. तो ये पूरा का पूरा इतना पार्ट आपको पैरेंथेसिस में डालना पड़ेगा, इतना पार्ट. ओके, सो वाइड, शो का रिटर्न टाइप वाइड, इसलिए स्टार पीएस का भी रिटर्न टाइप वाइड. किस कैसे एक्सेस करते हैं, एस डॉट स्टार पीएस ब्रैकेट्स के अंदर और फिर से ब्रैकेट्स. कीप इन माइंड, एस डॉट स्टार पीएस ब्रैकेट्स के अंदर फिर से ब्रैकेट्स. और वही अगर एस की जगह आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है तो पीओ एरो आएगा, डॉट की जगह एरो, और स्टार पीएस ऐसे का ऐसे ऐसे ही. तो जैसे हमने नॉर्मल के लिए बनाया वैसे पैरामीटर्स फंक्शन के लिए, तो इसके बाद के जो पैरेंथेसिस के अंदर जो रहता है वो इधर में चले गए. और कितने पैरामीटर है, एक है, क्योंकि गेट डी की डेफिनेशन तो ऑलरेडी ऊपर में रहेंगे क्लास में, लेकिन स्टार जेडी के लिए भी कौन से रहेंगे पैरामीटर वो भी हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा. तो गेट डी के लिए एक पैरामीटर है, तो जेडी के लिए भी कितना रहेगा, एक रहेगा, उसका टाइप और उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड. तो फिर ये ऐसे ही एस डॉट स्टार जेडी और वैल्यू जो पास करते हैं नॉर्मली ऐसे ही पीओ एरो स्टार जेडी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंटर है इसलिए एरो आया, स्टार जेडी इन ब्रैकेट 45. ये प्रोग्राम उसके लिए बनाया हमने. पहले ये नॉर्मल के लिए नॉर्मल डेटा मेंबर एक्सेसिंग पॉइंटर मेंबर फंक्शन, फिर हमने दूसरा बनाया पॉइंटर ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर मेंबर फंक्शन, फिर हमने तीसरा बनाया यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर मेंबर फंक्शन विद द पैरामीटर्स. और फिर चौथा बनाया पॉइंटर ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग पॉइंटर मेंबर फंक्शन विद द पैरामीटर्स. तो ये 4 वेरिएशंस हो गए. फिर हमने स्ट्रिंग के लिए देखा था, ये स्ट्रिंग में हमने क्या किया, स्ट्रिंग में हमने फंक्शन लेवल पे पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट किया. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मेन में पॉइंटर्स के साथ डील कर रहे थे, वो होते डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट. नाउ हियर वी आर फोकसिंग पॉइंटर्स ओवर द ऑपरेशंस. यहाँ पे हम ऑपरेशंस के लिए पॉइंटर का यूज कर रहे हैं. अगर आपको यहाँ पे भी गेट डेटा का पॉइंटर बनाना है तो यू कैन डू, कैल लिंक का भी पॉइंटर बना सकते हो, शो डेटा का भी पॉइंटर बना सकते हो. Even you can create a pointer for the object. Okay, so this is for this one to calculate the length of a string, and this is the program to find the largest number in the integer array. This is your integer array, and in that you have to find the largest element using the pointer. तो यहाँ पे भी हम L का भी ऑब्जेक्ट बना, L ऑब्जेक्ट का भी पॉइंटर बना सकते हैं, गेट डेटा का भी पॉइंटर बना सकते हैं, शो डेटा का भी पॉइंटर बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द
given problem definition. So this is all about the pointers.